बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी जरा 2-4 मिनट और दे देते हैं लोगों को। मैं आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल ज्वाइनिंग। आप लोग मुझे टेक्स्ट मैसेज करके जो जूम के अंदर टेक्स्ट मैसेज फैसिलिटी है उसके जरिए बता सकते हैं अगर आप में से किसी को आवाज नहीं आ रही। मैं जरा अपने को जो एंकर हैं उन्हें जरा चेक कर लूं कि वो अवेलेबल हैं या नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहजाद भाई, आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, परफेक्ट। माशाल्लाह जी। तो वी स्टार्टेड विद 25 पीपल। नाइस। हाँ जी, सो शुरू करते हैं। मेरे ख्याल में मुझे कंसर्न ये है कि हम 40 मिनट के अंदर रैप अप कर लें। आप मेरे पास एक्सपीरियंस में नॉर्मली वो लिमिट आपकी रिमूव हो जाती है विद इन अच्छा, विद इन द मीटिंग। यू गेट अ मैसेज तो हम्म, लिमिट रिमूव हो जाती है। लेकिन इन केस अगर सेशन डिस्कनेक्ट हो जाए तो एवरीबॉडी कैन यू जस्ट ज्वाइन अगेन एंड वी कैन रिज्यूम फ्रॉम देयर। काशी भाई, जी सर। uh, we can start now. Welcome everybody. It's mashallah, we have a good start. We are having like 29 people to start with. So we'll start the session now, and Kashi will introduce himself. Okay, and those who don't know him, most people already know him. So I will also introduce myself for the people who are new to GISP. So we'll start the session now. ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, गुड गुड टर्नआउट। सो आज का जो सेशन है इज कंबाइन एफर्ट फ्रॉम उर्दू आईटी एकेडमी एंड गिस्ट प्लेटफॉर्म। सो पहली स्लाइड शुरू करते हैं मेरे ख्याल में। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी करियर एडवाइस। वी आर गोइंग टू डिस्कस कि अगर किसी ने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फील्ड के अंदर जाना है तो व्हाट ही नीड टू डू। सो जस्ट क्विक इंट्रोडक्शन टू द स्पीकर्स about me. अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनूंगा। 15 साल से एक्सपीरियंस ऑन डिजाइनिंग networks and work in a different sectors, and I'm a founder of Urdu IT Academy, very humble founder of it. We have almost 2 million viewers। और using Urdu IT Academy जो सा है मेरा इंट्रोडक्शन शहजाद भाई से हुआ। और we are here to share our knowledges and experience to help our younger youth to start their career in cybersecurity. So apart from that, I'm involved with the Information Security magazine, ISC ka magazine hai, usme I have written a couple of articles. If you are already an ISC member, you must have seen it. Or I'm also involved with University of West London and Royal Holloway, and we are helping them to do some cyber security field MS and PhD research. Quick introduction of Shahzad Subhani, because I need Shahzad Subhani's bhai's help in this presentation because I don't have a very vast knowledge around a cyber security job market in Gulf. So Shahzad bhai is going to help us there. He has vast knowledge around cyber security and security operations, and he's been working with some malware protection, anti-phishing, and SIM solutions. And Shahzad bhai was here like 2 years ago, I believe, Shahzad bhai, and we had a face-to-face meeting, and it was very helpful. So couple of housekeeping points. If you are unable to hear audio, look at the bottom left corner or right corner, or all speakers are muted. आप लोग muted हैं, ठीक है? और अगर आपको कोई question है, just write a chat message and I would start to try picking them up. Session would last for almost 40 minutes, और इस session की recording मैंने advanced setting में enable की हुई है. I hope recording हो रही है. So at the end of this session, you would have a recording available. Nice transition. So security in modern day. A career in a cyber security is ideally suited उन लोगों के लिए जिनमें ना फ्लेयर है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं हो,
आस्क योरसेल्फ अ वेरी ऑनेस्ट क्वेश्चन, क्या मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकता हूँ? ठीक है, अगर मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकता हूँ तो, और गुड कम्युनिकेटर हूँ, और आई लव एडवांस न्यू टेक्नोलॉजी, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. इसके ऑन द बेसिस ऑफ मी मेंटरिंग अ लॉट ऑफ यंग GCSE A लेवल स्टूडेंट जो साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हैं बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री आई एम वर्किंग इन, इट इज वन ऑफ द की थिंग कि मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि यार आप अभी नहीं सोचो, अभी आप बहुत यंग हो, 18-19 साल के हो, यू वांट टू डू समथिंग दैट एक्साइट्स यू. आप ये सोचिए आपसे 20-25 साल के बाद आपकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद व्हाट वुड मेक यू गेट आउट ऑफ अ बेड एंड डू द जॉब? अगर आपको लगता है साइबर सिक्योरिटी वो चीज है, देन गो फॉर इट. I have come across multiple different type of people in the industry, जो उनसे हैं different mindset के साथ हैं, and some of them didn't go very well in cybersecurity. So be very mindful of that. Try to do something which really makes you happy. Cyber security myth. ये यहाँ पर मैंने जो है मिस्टर इनक्रेडिबल के करेक्टर ऐड किया, और ये फीमेल करेक्टर इसलिए ऐड किया क्योंकि देयर इज अ ह्यूज शॉर्टेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, गुड प्रोफेशनल्स विद द राइट एटीट्यूड, और देयर इज अ मैसिव शॉर्टेज ऑफ वुमेन इन साइबर सिक्योरिटी. तो देयर आर लॉट ऑफ कैंपेन्स, देयर आर लॉट ऑफ सपोर्ट गोइंग ऑन राइट नाउ. ISC, इसाका, डिफरेंट बड़े मैसिव प्लेटफॉर्म जो से हैं, वो अगर वुमेन इन साइबर सिक्योरिटी में आना चाहती है तो वो उन्हें बहुत हेल्प कर रहे हैं. ठीक है, तो और दूसरा ये कि साइबर सिक्योरिटी मिथ ये है कि देयर इज नो वन बटन टू डू द अटैक एंड वन बटन टू डू द डिफेंस. तो आपको ये जो से दोनों काम जो से बराबर चलाने पड़ते हैं. ठीक है, कि एक बटन से आप दबा के अटैक नहीं कर सकते और एक बटन को दबा के आप डिफेंस नहीं कर सकते. देयर आर लॉट ऑफ बिग साइंस गोइंग ऑन बिहाइंड इट. मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, लास्ट 4 से 5 साल उर्दू IT के साथ इन्वॉल्व होकर, लोकल इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटीज के साथ इन्वॉल्व होकर, ये मोस्ट कॉमनली 5 क्वेश्चंस लोगों ने आस्क किए कि how to start in a cyber security, can I do CISP and CEH, how much money I will make, and I don't like programming, can I do security? ये top 5 questions हैं. Stop video, sorry, कुछ लोग जो से join कर रहे हैं with the video, so I'll have to stop it in the middle. Okay, so हम बात कर रहे थे how to start in cybersecurity. We are going to cover it in today's session. How can I do CISSP in CEH? मेरी फर्स्ट सजेशन आप लोगों को ये है कि डोंट स्टार्ट विद CISSP. CISSP is like a top notch certification. You don't want to waste it. CEH अगर आप पेन टेस्टिंग करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हंस रहे होंगे क्योंकि मेरा CEH जो सा लास्ट वीक एक्सपायर हुआ, I didn't bother to renew it. तो CEH अगर आप करके पेन टेस्टर बनना चाहते हैं तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी ऑन इट. हाउ मच मनी आई विल मेक? मेरा आंसर अगेंस्ट दिस क्वेश्चन ये होता है कि भाई दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच. ठीक है, राइट अप्रोच इज कि आप कोशिश करें कि आप कुछ ऐसी चीज करने की कोशिश करें जो आपको लगता है कि आप बहुत अच्छी कर सकते हैं. ठीक है, एंड यू आर पैशनेट अबाउट इट. ठीक है, और उसके बाद जो सा है आप उस फील्ड को अडॉप्ट करें. अगर आपको लगता है कि साइबर सिक्योरिटी इज गोना मेक यू मिलियंस मगर आप करना नहीं चाहते, डोंट डू इट, प्लीज डोंट डू इट. आई डोंट लाइक प्रोग्रामिंग, कैन आई डू इट? ये बड़ा ब्लरी सा क्वेश्चन है, मगर आई वुड सजेस्ट यू, इट्स गुड फॉर यू टू नो अ प्रोग्रामिंग फर्स्ट बिफोर यू जंप इनटू साइबर सिक्योरिटी बिकॉज इट वुड हेल्प यू. ओके, एक एक्स्ट्रा माइल लेके जाएगी आपको. तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, सॉरी बहुत सारे लोग जो से हैं वीडियोस के साथ ज्वाइन कर रहे हैं. गाइस, इफ यू आर ज्वाइनिंग विद द वीडियो, प्लीज स्टॉप योर वीडियो बिकॉज इट्स गोना पॉप अप ऑन माय स्क्रीन. सो प्रोग्रामिंग इज अ गुड टूल टू हैव इन योर आर्सनल. तो इट वुड हेल्प यू गो फर्दर वे. अगर आप फर्दर फोरेंसिक्स करना चाहते हैं या एडवांस मेलवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग वगैरह करना चाहते हैं, या आजकल जो से है बहुत सारे सिक्योरिटी वेबिनार्स या सेशंस आप अटेंड करें, तो अ लॉट ऑफ बिग कंपनीज आर यूजिंग देयर ओन सिक्योरिटी टीम टू राइट देयर ओन कोड. Interestingly, last year, Federal Reserve से CISO आए हुए थे and he was talking about कि हमारी जो सिक्योरिटी की टीम है वो लाइब्रेरीज राइट करती है so the developers can use it within their coding practices. So different variations हैं इसके अंदर, मगर hard and soft answer is not compulsory, but you should have a basic understanding of programming. Things to do. तो अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट, कोई यंगस्टर
बल्कि ऐसे भी लोग हैं जो सिक्योरिटी की जॉब कर रहे हैं, सिक्योरिटी लाइक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं या टैक्सी ड्राइविंग कर रहे हैं, एंड दे कम टू मी एंड से काशिफ भाई आई वांट टू डू साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, तो मेरी पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि यार आप में पोटेंशियल है, आप कर सकते हो, क्योंकि आपने करनी है ये एफर्ट, मैंने नहीं करनी। ट्राई टू एजुकेट योरसेल्फ। और साइबर सिक्योरिटी कोई ऐसी सर्टिफिकेशन या साइबर सिक्योरिटी कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसके लिए आपको बहुत मैसिव लैब इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। लाइक अगर मुझे पता है व्हेन वी स्टार्टेड इन नेटवर्किंग, हमें अगर फायरवॉल चाहिए तो फायरवॉल उस टाइम वर्चुअल एनवायरनमेंट में नहीं थी, बड़ी महंगी फायरवॉल मिलती थी 6500 या नेक्सस पे काम करना, तो वो चाहिए आपको। तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो सा है आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, और राइट नाउ आजकल के दौर में आपके पास बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। ठीक है, गिस्प इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म। सो हैव योर ओन लैब। फर्स्ट थिंग, अपनी लैब बनाएं, ऑपरेटिंग सिस्टम नॉलेज होना चाहिए, VMware नॉलेज होना चाहिए, VPS, वेब होस्टिंग। ट्राई टू होस्ट योर ओन वेबसाइट, आपको पता चल जाएगा सिक्योरिटी कैसा एक्सपीरियंस है। क्योंकि अगर आपने एक ऐसी वेबसाइट बनाई जिसका कोड सिक्योर नहीं है, एक छोटी सी PHP की वेबसाइट बना के होस्ट कर दें तो आपको पता चल जाएगा, या वो वेबसाइट डाउन हो जाएगी या आप सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक है, ये एक्सपीरियंस मेरा जाती एक्सपीरियंस है। उर्दू IT Academy व्हेन वी स्टार्टेड वी हैड अ लॉट ऑफ साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, and thanks to a lot of cyber security guys who help us stay up to date. Twitter is a key thing, a lot of people are using Twitter nowadays. ठीक है, मैं अपने बच्चों से बात कर रहा हूँ, my kids are going in year 8 and 9, so I was talking to them and says, okay, what is your favorite platform? Is it Facebook? They say no, Facebook is like for the people who are born in 1970s 1980s. We use Twitter, Instagram, sort of stuff. ठीक है, so stay up to date with the Twitter is very helpful platform. Blogs, network with other. Networking is very key component for you to learn around cyber security, क्योंकि आप लोगों ने share your experiences. Try to attend conferences, try to attend webinars are very helpful. Like one of today's session is like a webinar. CTF, capture the flag. कैप्चर द फ्लैग के अराउंड बहुत सारे सेशंस हो रहे होते हैं। अगर आप हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग में जाना चाहते हैं, देयर आर लॉट ऑफ ओपन कैप्चर द फ्लैग एक्टिविटीज हैपनिंग। साइबर चैलेंजेस, यूके की GCHQ और NCA जो सा है यूके साइबर चैलेंजेस इंट्रोड्यूस कराता है, तो यू हैव टू अटेंड दोस टाइप ऑफ सेशंस। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं, तो वो यूके की ऑडियंस के लिए नहीं है, आप भी अटेंड कर सकते हैं। माइलस्टोन योर प्रोग्रेसेस। माइलस्टोन योर प्रोग्रेस से मुराद ये कि आप आज अगर डिसाइड करते हैं मैंने कुछ करना है, तो लर्न सम बेसिक टेक्नोलॉजीज लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको आना चाहिए, लिनक्स, अ लिटिल बिट ऑफ लिनक्स आनी चाहिए, थोड़ी सी मेरे से ज्यादा आनी चाहिए कि LS की कमांड क्या करती है। और फिर उसके बाद आप जो है फर्दर अ लिटिल बिट ऑफ PHP कोडिंग, एंड देन यू कैन स्टार्ट लर्निंग अबाउट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड व्हाट आर द लेटेस्ट वल्नरेबिलिटीज। यहाँ पर मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे हायरिंग का एक्सपीरियंस हुआ फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम वैंकूवर वेस्ट कोस्ट US टू यूरोप। So I was sitting with one of the financial institutions guy and we were doing an interview. तो उनका जो CISO था, उसने इंटरव्यू में एक लड़का था, वो जूनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पे आना चाह रहा था। तो उसने कहा टेल मी अबाउट एनी 5 वल्नरेबिलिटीज। अब ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सपीरियंस, अगर आप जो सा है तमाम ऑफ द चार्ट ऑफ द बुक तमाम क्वेश्चंस याद करके गए होते, तो you could not have told about what are the most recent 5 vulnerabilities. सही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। that highlights the importance के stay up to date, like US CERT is one of the key place where I would go. अच्छा, उसके बाद प्रैक्टिसिंग विद बाउंटीज। अगर आप अब इस लेवल पे हो गए, आपने कैप्चर द फ्लैग कर लिया, यूके साइबर चैलेंजेस, और मुझे नहीं पता बाकी कंट्रीज कर रहे हैं या नहीं साइबर चैलेंजेस, वो तमाम चैलेंजेस अटेम्प्ट कर लिए, फिर स्टार्ट डूइंग द बाउंटीज। एंड बाउंटीज आर वेरी हेल्पफुल। बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके बाउंटी हंटिंग प्रोग्राम्स नहीं है, मगर दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, कि अगर आप से फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसकी आपने वेबसाइट के अंदर एक SQL इंजेक्शन ढूंढ लिया, दो I would not suggest you to go and do the SQL injection on any website. आप उनकी साइबर सिक्योरिटी की टीम को कांटेक्ट करेंगे और उन्हें बताएंगे ये मेरा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, आपको POC देना पड़ेगा उन्हें कि ये मैंने SQL इंजेक्शन किया और ये स्पेसिफिक काम होता है और ये प्रूफ है। तो अगर वो आपको पैसे नहीं ना देंगे, तो दे वुड सेंड यू समथिंग एल्स, either an appreciation letter or something that would help you create your profile. और लास्ट थिंग इन दिस होल लिस्ट इज फाइंड अ मेंटोर इफ यू कैन, क्योंकि मेंटोर की आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। Maybe he is not that skillful, but he would help you to
डायरेक्ट यू इनटू द राइट डायरेक्शन। मेरे ख्याल में किसी एक बंदे का माइक जो सा है वो म्यूटेड नहीं है, तो कैन यू प्लीज चेक योर माइक्स। अच्छा, यस सर। ट्विटर की एक एग्जांपल, ये आज सुबह की ट्वीट है ग्रे नॉइस की कि 875% स्पाइक ऑन द इंटरनेट ट्रैफिक ऑन दिस स्पेसिफिक टीसीपी। तो ये क्या हुआ, आपको पता चल गया। अगर आप किसी स्पेसिफिक नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर में, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में बैठे हुए, तो आप सबसे पहले देखेंगे डेस्टिनेशन 9527। अब यहाँ से आगे आप कुछ भी कर सकते हैं, आप प्रोफाइल कर सकते हैं वो आईपी एड्रेसेस, उसको इंडिकेटर्स ऑफ कंप्रोमाइज में डाल सकते हैं, ठीक है। आईओसीज यानी जब आपके पास कोई कंप्रोमाइज होता है तो आप उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके लोगों के साथ शेयर करते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द ट्विटर एग्जांपल। रिसोर्सेज, मेरे ख्याल में ये रिसोर्सेज सही स्पेल नहीं हुआ वो। ब्राइट टॉक इज अ रियली गुड प्लेटफॉर्म। मोस्टली क्या होता है, बहुत सारे लोग कमर्शियली जो उनसे हैं अपने प्रोडक्ट्स को अनाउंस करने के लिए वहां आते हैं, बट इट्स रियली अ गुड प्लेटफॉर्म, यू कैन ज्वाइन इट। उर्दू आईटी अकेडमी, हमारे पास काफी सारी सिस्को की सर्टिफिकेशंस हैं, फायरवॉल सर्टिफिकेशंस है, CISSP है वहां पे, और आजकल मैं CCNA साइबर ऑप्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ। It's a very basic level 1, I would say, level 1 security operation center analyst job के लिए बहुत helpful है। GISP on the other hand side is helping writing a lot of documents. A guide for a newbies is really good guide, very helpful. और उर्दू आईटी अकेडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने अंडर यूजफुल लिंक्स लास्ट ईयर थोड़ी सी एफर्ट की कि सिक्योरिटी एनालिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस जो से हैं हमने डाल दिए। अगर आप उर्दू आईटी अकेडमी की वेबसाइट पे जाए, अंडर यूजफुल लिंक्स और सिक्योरिटी को क्लिक करेंगे, वहां पर आपको सिक्योरिटी एनालिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे। दैट इज वेरी हेल्पफुल डॉक्यूमेंट। हमारा इरादा है कि इस साल दोबारा उसे रिन्यू करने के लिए, ठीक है। उसमें हमने अपनी कम्युनिटी से हेल्प लेके जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया था इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट इंटरव्यूज के लिए, उनको उनके क्वेश्चन जो उनसे इंटरव्यू में आज पूछे गए थे वो सारे डाले हुए हैं। गिप्स वेबिनार लाइक सेशंस वी डू, गिप्स गाइड, और उसके अलावा जो से ये 3 या 4 डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, बट ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी करियर पाथ के अंदर मिल जाएगी। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि साइबर सिक्योरिटी फील्ड जो सी है कितनी बड़ी है, क्या करें यार, हम पेंटेस्टर बने, मैं डेवलपर बनना चाहता हूं, मैं डिजिटल फोरेंसिक्स करना चाहता हूं। बहुत कम लोग आते हैं जो वांट टू डू डिजिटल फोरेंसिक्स, मगर there is a possibility। तो मैंने जो सा ये सेंस से या गैक से ये लिंक लिया, ठीक है, और ये जो सा है 5 डिफरेंट पाथ्स आपको दिखा देता है। 5 रास्ते हैं आपके पास, या आप साइबर डिफेंडर बनना चाहते हैं, डेवलपर बनना चाहते हैं, डिजिटल फोरेंसिक एनालिस्ट, पेनिट्रेशन टेस्टर, या मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। जब मैं CISSP की बात करता हूं तो हम इस साइकिल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हैं, आप उसमें एक्सेल करना चाहते हैं कि आप एक कंपनी XYZ में बैठे हुए हैं और आपको लगता है वहां पर साइबर सिक्योरिटी की नौकरी अवेलेबल है या पोटेंशियली अवेलेबल है, देन स्पीक टू योर साइबर सिक्योरिटी टीम। अगर आप ब्रांड न्यू स्टार्ट लेना चाहते हैं और आपको पता नहीं है कहां से स्टार्ट लेना है, देन आई वुड स्टार्ट फ्रॉम हियर। उसकी वजह यह है कि ये साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसको सिक्योरिटी मैनेजर्स की जरूरत है, एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योरिटी मैनेजर की जरूरत नहीं है। इसलिए आपको वल्नरेबिलिटी एनालिसिस का पता होना चाहिए, पेनिट्रेशन टेस्टिंग का पता होना चाहिए, यानी काली शाली थोड़ी सी आनी चाहिए, ठीक है। नेसेस वेसेस का पता होना चाहिए, मॉनिटरिंग एंड डिटेक्शन का पता होना चाहिए, IPS फायरवॉल्स होनी चाहिए, और बेसलाइन डिफेंस सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज। सही हो गया, हार्डनिंग ऑफ विंडोज। अगर आप फर्दर एडवांसमेंट की तरफ चले जाते हैं, फिर आपके पास ये लीगल एंड ऑडिट्स आ जाता है, मेलवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग, बहुत हार्डकोर बड़ी स्पेशलाइज्ड स्किल सेट है। डोंट फोकस एट दैट वन राइट नाउ, अनलेस आप अपने करियर में एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर आप सिक्योरिटी ऑपरेशंस रन कर रहे हैं और आप क्या चाहते हैं, यार आई वांट टू बी रिवर्स मेलवेयर इंजीनियर, ठीक है, फिर आप मेलवेयर रिवर्स इंजीनियर, फिर आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, कुछ और सिक्योरिटी इंडस्ट्री से बातचीत की जो ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे थे, GCHQ और NCA भी उसमें इन्वॉल्व थी। तो आई कम अप विद माय ओन थिंग, जो उर्दू आईटी अकेडमी पे भी हमने एक दफा पब्लिश किया, कि ये जो ऊपर 5 पिलर्स बने हुए हैं, ये एक्चुअली 7 पिलर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो सा है मैंने कहा ये फाउंडेशन है, ठीक है। अगर आप टैक्सी ड्राइव कर रहे हैं या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो IT से रिलेटेड नहीं है, एंड यू वांट टू जंप इनटू साइबर सिक्योरिटी, आई वुड से दिस इज अ स्टेप दैट यू नीड टू टेक राइट नाउ।
ITIL A+, नेटवर्क प्लस, सिक्योरिटी फंडामेंटल, सिक्योरिटी ऑपरेशंस, ये चीजें करनी पड़ेंगी आपको। और उसके बाद फिर आप डिसाइड कर सकते हैं इन 7 पिलर्स में आपने क्या उठाना है। साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस करना चाहते हैं तो ये चीजें आपने करनी है। पर्ल, पाइथन, रूबी भी डाल दिया मैंने बीच में। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड आर्किटेक्चर करना चाहते हैं तो आप कोई डिफरेंट सर्टिफिकेशन GRC करना चाहते हैं। डिजिटल फोरेंसिक्स एंड इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, इंसिडेंट रिस्पॉन्स। ये डाटा प्राइवेसी, मोस्टली ये यूरोप के अंदर GDPR रिलेटेड जो है अब हमें DPO हायर करने पड़ते हैं, ठीक है। एथिकल हैकिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। भाई मैं यहाँ पे थोड़ा सा बाइस हूँ, एथिकल हैकिंग एंड पेन टेस्टिंग। अगर कोई बंदा जो सा है मेरी तरह बूढ़ा है, उसको सांस भी चढ़ जाता है बोलते हुए, तो मैं उसको सजेस्ट नहीं करता भैया तुम एथिकल हैकिंग पढ़ो, ठीक है। क्योंकि एथिकल हैकिंग व्हाट आई वुड सजेस्ट कि नीड अ लॉट ऑफ बर्निंग, और अगर आपके बच्चे हैं तो यू हैव टू स्पेंड सम टाइम विद योर फैमिली, अ क्वालिटी टाइम। तो आई वुड नॉट सजेस्ट टू गेट इनटू पेनिट्रेशन टेस्टिंग। सिक्योर कोडिंग, secure coding is an emerging market now. A code review or security code reviews are happening right now, and not just the penetration testing. So a lot of people are going towards that field. Or IoT, let's not forget about IoT because it's becoming a very key component of our life. So IoT is a thing that everybody is talking about right now. Jobs. So my way of understanding a market, क्योंकि 2008 में जब मैं UK आया तो I had to understand a market, what type of job I want to gain. So the best way to look for the jobs is read the job descriptions and find out what type of skill set they are looking for. तो मैंने कुछ जो सी हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड जो सी हैं जॉब्स सर्च की फॉर द सेक ऑफ दिस सेशन, और उसके अंदर आपको 2 या 3 हाईलाइटेड पॉइंट्स मैं बताऊंगा ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि यार यूरोपियन मार्केट, लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, ये सारी की सारी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है मैंने यूरोप, US और कनाडा से उठाई है, ठीक है। अगली स्लाइड जो सी है वो आई एम गोना हैंड ओवर टू Shehzad Subhani and grab a bottle of water in the meantime. So Shehzad bhai is going to talk about couple of job description we have in the slide for a Gulf market. So पाकिस्तान से रिलेटेड हमने एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली जॉब्स नहीं डाली because we didn't find enough. Magar I think Gulf would give you a very good idea. So for my European market, I'm going to quickly run through it. Network analysis, malware analysis, reverse engineering, vulnerability assessment, OSINT. OSINT आजकल बहुत कॉमन हुआ है, और SIM प्लेटफॉर्म, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, मुझे लगता है स्लाइड क्लियर करनी पड़ेगी। इसके अंदर देखें आप SAN, CISSP, CEH, GIAC वगैरह की सर्टिफिकेशन, मगर आप यहाँ पे एक बात देखें कि प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसे अगली जॉब डिस्क्रिप्शन अगर हम देखें, is all about operating system, Windows, NX, OX, मगर experience with C, C++, Python, ठीक है, embedded architecture assembly। उसके बाद आगे चले जाएं तो सेम नेटवर्क इंट्रूजन प्रिवेंशन, हिट्स, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन, ठीक है, लॉ एंड रेगुलेशन, DDoS, इनसाइडर थ्रेट्स, इस तरह की चीजें कवर हो रही है। तो ये काफी वैरायटी हमें यहाँ पे नजर आ रही है। ये हार्डकोर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है, मगर वर्ड एंड एक्सेल टाइप का भी काम है, सिम सोल्यूशन है, और सॉक है, ITIL फाउंडेशन, कॉम्प्टिया, क्रेस्ट प्रैक्टिशनर, मे बी CCNP सिक्योरिटी। तो लग रहा है ये नेटवर्क साइड ऑफ अ जॉब है। इस जॉब के अंदर हमें जो सा है कुछ इतना खास नहीं मांगा हुआ, मगर इन्होंने सिम की बात की हुई है, ठीक है, वल्नरेबिलिटी एंड हंटिंग की बात की हुई है, ठीक है। इससे आगे हम चले जाते हैं तो ISO 27001 की बात आ जाती है, ठीक है। ये थोड़ा कंप्लायंस की बात है। CASB solution is becoming very very important since the industry is moving toward a cloud based solution. SIM, UABA बहुत कॉमन हो रहा है आजकल मार्केट के अंदर, यूजर बिहेवियर एनालिसिस। और भैया आप जरा म्यूट कर लें। एक्सपीरियंस यूटिलाइजिंग ए साइबर किल चेन एंड डायमंड मॉडल, ये काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको नहीं पता तो वॉच ओवर CCNA साइबर ऑप, और मेरे ख्याल में प्रॉमिस दिस इज द लास्ट वन, CEH, SANS, GIAC और सॉर्ट ऑफ सर्टिफिकेशंस। So I'm gonna hand over to Shehzad bhai. Shehzad bhai, are you there? जी मैं हूँ यहाँ पे। ठीक है। इन द मीन टाइम आप जब तक अगली स्लाइड्स बता रहे हैं तो मैं इतनी देर जरा मैसेजेस देख लूं, लोगों ने क्वेश्चंस पोस्ट किए हुए काफी सारे। हाँ जी, और कुछ लोगों को म्यूट कर दे, जो इनके 2-3 लोग हैं जिनके माइक्स ऑन है, तो वो वहां से नॉइज आ रहा है बहुत ज्यादा।
मुझे लगता है मैंने शहजाद भाई को म्यूट कर दिया गलती से। म्यूट, आप सबको म्यूट करके फिर मैं मुझे अनम्यूट कर दीजिएगा। हाँ जी, ठीक है, स्लाइड है मेरे लिए कोई यहाँ पे या जी नहीं? जी स्लाइड है। हाँ जी, ये देखिए यहाँ पे जो है इस वक्त मिडिल ईस्ट की जीसीसी की मार्केट की बात कर रहे हैं। जीसीसी में रिसेंटली जो ज्यादा काम आ रहा है वो सॉक का काम ज्यादा आ रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज के सॉक है तो उस पे वो एक्सपेंड कर रहे हैं। बाद में वो 24/7 पे जा रहे हैं। मतलब अक्सर यहाँ पे जो अब तक पहले शौक होते थे वो होते थे 9 to 5। तो अभी भी है कुछ लोगों के, लेकिन ज्यादातर प्रेफरेंस अब ये हो रही है बड़ी कंपनीज की कि वो 24 आवर्स पे जाएंगे। उसके लिए फिर वो बना भी रहे हैं, आउटसोर्स भी कर रहे हैं। अगर दोनों केसेस में अगर वो खुद अपना बनाते हैं या आउटसोर्स करते हैं, दोनों केसेस में जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी निकलती है। तो उसके हिसाब से फिर वो होती है। अब ये जो है जैसे इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, ये कुछ क्लियर नहीं है इतना। Let me see। जैसे ये वाला है, ये L2 है, सिक्योरिटी एनालिस्ट का, OT ICS स्काडा। ये बड़ा स्पेसिफिक स्काडा के हवाले से है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी मतलब जो ज्यादा जो सोल्यूशन ज्यादा यहाँ पे यूज हो रहे हैं सिप के लिए, वो QRadar यूज हो रहा है, लॉगरिथम्स यूज हो रहा है। स्प्लंक बहुत ज्यादा अभी नया नया काफी ज्यादा जो है उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो स्प्लंक पे काफी इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है यहाँ बैंक्स के। मैं ज्यादातर मैं ताल्लुक मेरा बैंक से है, तो मैं बैंक्स का ज्यादा बता सकता हूँ कि वहां पे ज्यादा पहले आर्कसाइड था ज्यादा। अब वहां पे ये आ रहा है अपना क्यूरोडार आ रहा है और स्प्लंक आ रहा है ज्यादा। तो इस हिसाब से मतलब यहाँ पे है जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी निकल रही है इसमें। अच्छा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जब आप कहते हैं तो उसका काफी स्कोप है। कुछ लोग समझते हैं कि खाली हैकिंग जो है वही इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होती है। सर हैकिंग नहीं होती, इसके मतलब पेनिट्रेशन टेस्टिंग सब बोलते हैं। उसके अलावा भी बहुत से फॉर्म्स है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की, जिसके अंदर सिक्योरिटी ऑपरेशंस है, आप प्रोडक्ट्स को हैंडल करते हैं। कि उसके अलावा मैलवेयर एनालिसिस है। अब इसके अंदर जैसे सिम का है, सिम एडमिनिस्ट्रेशन एक चीज होती है कि आपका जो भी आपका एक सॉक यहाँ पे होता है उसके अंदर जैसे आप उसमें लॉग्स लॉग्स लेके आते हैं, तो उसको मैनेज करना। उसके बाद सिप के ऊपर मजीद रिपोर्टिंग करना, डैशबोर्ड्स बनाना, क्वेरीज बनाना, ठीक है। फिर सिप के अंदर सॉक के अंदर मल्टीपल किस्म के रोल्स होते हैं। बाज लोगों के पास कोई L1 होते हैं, L2 है, उसके बाद L3 भी होता है जो कुछ ज्यादा उसमें हेल्प करता है चीजों को रिजॉल्व करने में। तो अब इस वक्त जो लेटेस्ट जो चल रहा है ट्रेंड यहाँ पे, वो ज्यादा उसका चल रहा है, डेटा फोरेंसिक्स का चल रहा है। डेटा फोरेंसिक्स और इंसिडेंट रिस्पॉन्स का। मोस्ट केसेस में आप नहीं समझ सकते कि इंसिडेंट डेली यहाँ पे आता है किसी कंपनी में, लेकिन बाज केसेस में जैसे ग्लोबल हालात चेंज होते हैं तो बाज अटैक्स बढ़ जाते हैं, बाज कॉम्प्रोमाइज मतलब स्पेसिफिक गवर्नमेंट एंटिटीज को अटैक किया जाता है। तो उस केस में फिर यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि रिसेंटली जो नई मैं देख रहा हूँ, थोड़े अर्से से मैं पहले कुछ महीनों से देख रहा हूँ, तो ज्यादा जो जॉब्स अब आना शुरू हो गई है वो फोरेंसिक्स की जॉब्स भी आना शुरू हो गई है, जिसके अंदर वो स्पेशली ढूंढ रहे हैं बंदे जिनका फोरेंसिक्स का एक्सपीरियंस हो। तो फोरेंसिक्स का हो, इंसिडेंट रिस्पॉन्स का हो, एविडेंस कैसे कलेक्ट करनी है, इस तरह की चीजों का है। तो अभी हम ये वाली सीवी अगर हम देखते हैं जो सामने खुली हुई है, ये पोजीशन है साइबर सिक्योरिटी गवर्नेंस एनालिस्ट। उसके अंदर आप देखेंगे उसमें एक्सपीरियंस क्या क्या मांगा हुआ है। IT ऑडिट का एक्सपीरियंस मांगा है, कंप्लायंस का मांगा है, एश्योरेंस का मांगा है। उसके अलावा CSSP की रिक्वायरमेंट है, सीसा की है। हालांकि ये दो अलग चीजें हैं, सीसा जो है एक डिफरेंट पाथ है और CSSP एक डिफरेंट पाथ है। हाँ, लेकिन अगर गवर्नेंस में है तो आई बिलीव कि सीसा जो है ज्यादा रेलेवेंट है इस हवाले से। तो उसके अलावा उसमें उन्होंने अब जो गवर्नेंस का जो भी आदमी होता है, अब कैसी स्किल है यहाँ पे जो लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की स्किल। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि फर्ज करें आपको, आप यू आर गुड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्सपर्ट, लेकिन अगर आप गवर्नेंस में हो, गवर्नेंस के रोल में हो, तो आपको एक्सेल शीट पे भी काम करना आना चाहिए, क्योंकि ज्यादा आपकी जो रिपोर्टिंग होगी वो एक्सेल बेस होगी। तो वो एक ऐसी स्किल है जो नॉन मतलब नॉन सिक्योरिटी स्किल है, जिससे IT स्किल है। तो वो भी आपको पास को डेवलप करनी पड़ती है कि आपके पास क्योंकि आपके पास बहुत सा डेटा आएगा, बहुत सी चीजें आती है, तो आपको उसको कैसे करना है, कंपेरिजन कैसे करना है, दो मुख्तलिफ डेटा सेट्स को कैसे आप देखोगे। तो इस तरह की है। तो ज्यादा जो सर हम जनरली मार्केट की बात करेंगे तो मिडिल ईस्ट में इस वक्त सॉक की बहुत अच्छी मार्केट है, मेलवेयर की, थ्रेट हंटिंग की मार्केट अच्छी है।
और इसके अलावा ये जो मैंने भी बताया DFIR की, डाटा फॉरेंसिक्स एंड इंसिडेंट रिस्पांस, हाँ ये थोड़ा एडवांस लेवल है कि क्योंकि इवन अगर मैं एक फर्ज करूँ, अगर आप सर्टिफाइड भी है तो प्रैक्टिकली आप यू डोंट डू दिस एवरी डे, कि आपके पास डेली ऐसे केसेस नहीं आते कि आप डेटा फोरेंसिक्स कर रहे हो और आप सब कुछ कर रहे हो, तो उसमें बंदा आउट ऑफ प्रैक्टिस होता है थोड़ा सा। तो इस पे आप काम करें, मतलब स्टडी करें, इसके हवाले से प्रैक्टिस करें थोड़ी बहुत जहां जहां आप कर सकते हैं। तो एक्सक्यूज मी, वीडियोस आप अपनी बंद करके इसको वो रखें, आप ऑडियो पे रखें। हाँ भाई, तो वो तो अच्छी चीज अपना जो है करना, तो तुझे पता है मैं इस मुल्क की सेवा चाहता हूँ। अच्छा जी, इसके अंदर कुछ मेंबर्स हमारे दूसरे भी हैं, तो उसकी वजह यह है कि उर्दू IT एकेडमी और गिफ्ट का ज्वाइंट है, तो इससे आपको इन लोग वो ना हो। उर्दू IT एकेडमी जो है वो ओपन है सबके लिए, तो इसलिए उसमें और भी मतलब दूसरे लोग भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। तो जी काशी हो भाई। गया शिजात भाई, लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्लोइंग अराउंड। सो एक दो क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है आई वुड नीड योर इनपुट इनटू इट। सो सबसे पहला जी ये जी है कि what you see as a future of penetration testing, a lot of people are saying penetration testing is finishing. So let me add my European spin on it. So you're right. A lot of small penetration companies जो सी हैं वो बड़ी penetration companies buy कर रही हैं, मगर penetration jobs are always there, ठीक है? And if you are in the top of your game, so you would always have a job, so you don't have to worry about it. अब आपने अपने आप से honest question पूछना है कि आपको लगता है कि आप जौन सा है on the top of your game है या नहीं, ठीक है? शहजाद भाई, your answer please. इसके अंदर मैं समझता हूँ कि ये इसमें स्कोप थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि होता क्या है कि फर्स्ट करो, पेन टेस्टिंग की जॉब्स एज सच कंपनीज खुद तो हायर नहीं करती। मतलब जो क्या है, एंड कस्टमर है, जैसे एक बैंक है या एक हॉस्पिटल है, वो अपना एक पेन टेस्टर हायर नहीं करेगा, वो मोस्टली किसी वेंडर के पास जाएगा कि जी आप हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड कर दें। तो वेंडर्स वो सर्विस प्रोवाइडर आपको हायर करता है एज ए पेन टेस्टर। अब होगा क्या कि अब यूज इसको देख ले, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो वो दे विल बी नीडिंग मे बी 1 or 2 पेन टेस्टर्स टू डू द पेनिट्रेशन टेस्टिंग। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर उसके पास एक सॉक है, तो उनको 8 से 10 बंदे चाहिए होंगे सॉक को चलाने के लिए। तो आप खुद देख ले कि किसका स्कोप ज्यादा है, पेन टेस्टिंग का थोड़ा है, उसके मुकाबले में 100 का है या ऑपरेशंस का है, उसका स्कोप ज्यादा हो जाता है, उसमें ज्यादा वैकेंसीज निकलती है। शहजाद भाई तो थोड़ा सा just to add a point here, very well put together by शहजाद भाई, कि अब penetration testing के साथ साथ कुछ काम ऐसे हो रहे हैं कि I have personal experience, I went to search for a company जो यानी हमारे SAST and DAST टाइप की टेस्टिंग कर दें और उसके बाद कोड रिव्यू भी कर दें, और sort of phishing campaigns हम थर्ड पार्टी के जरिए चलवाते हैं कि उन्हें कहते हैं कि भाई वाइट हमारी कंपनी के जो यूजर्स हैं उन्हें टारगेट कर दो, और फिर रेड टीमिंग के लिए कभी कभी जो सी है बाहर की कंपनीज को यूज करते हैं। तो डायनामिक्स चेंज हो रहा है, मगर एक हार्डकोर पेन टेस्टिंग स्टफ इज चेंजिंग इनटू समथिंग एल्स। जी जी बिल्कुल, मतलब पेन टेस्टिंग वही बात है कि उसमें आप अपने आप को कीप योरसेल्फ टू जेनेरिक रोल, आप ऐसे रखो कि अपने आप को लिमिट ना करो। हमने लास्ट टाइम देखा कि कोई लोग थे जो वो कहते थे पेन टेस्ट की जॉब ही ढूंढनी है, जबकि उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था सिक्योरिटी के फील्ड का ज्यादा। ऐसे केसेस में फिर उनके लिए मुश्किल हो जाती है कि वो उनको कोई एज ए पेन टेस्टर हायर नहीं करेगा जब तक कि उनका कुछ एक्सपीरियंस ना हो। तो गो अच्छा फॉर जनरल रोल, आप अपना जनरल काम करो, ऑपरेशंस का करो, कोई भी करो, फिर आप वहां से मूव करो। आप उसमें से कोई एक चीज आइडेंटिफाई करके आप उसकी तरफ चलो, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में चले जाओ, मेलवेयर एनालिसिस में चले जाओ, या आप उसमें पेन टेस्टिंग अगर आपको होता है उधर चले जाओ। तो शहजाद भाई, अगले अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। जी 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 अच्छा, अगला क्वेश्चन इज अराउंड व्हाट इज सॉक, और मैंने जो से कुछ इंटरव्यूज दिए सॉक के अंदर बट वाज नॉट बीइंग सक्सेसफुल। लेट मी आंसर दिस फ्रॉम माय एक्सपीरियंस एंड देन वी विल मूव टू शहजाद भाई। सो आई हैड couple of guys to get into a SOC role, especially that was UK and पोलैंड बेस्ड। और उसमें ये हुआ कि लड़के जो से थे वो बिल्कुल बेसिक IT बैकग्राउंड से आ रहे थे, हेल्प डेस्क में लड़का था और उसे SOC एनालिस्ट 1 का रोल चाहिए था, और उससे बेसिक क्वेश्चन पूछे गए। तो अगर वो इंटरव्यू क्वेश्चन जो से हमने उर्दू IT पे यूजफुल लिंक्स पे रखे हुए हैं, और हम उर्दू IT अकेडमी जो सा एक CH की सीरीज भी चला रही है,
सर्टिफाइड एथिकल हैकर कराची से हमारे एक ट्रेनर है, वो चला रहे हैं। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप सिक्योरिटी लर्न करना चाहते हैं और पेनिट्रेशन टेस्टिंग का हिंट लेना चाहते हैं, वी आर नॉट मेकिंग अ क्लेम कि यू वुड बी अ हार्डकोर पेन टेस्टर, but it would be a very good starting course, so please go for it. Maybe आप जो SOC analyst का या SOC role आप successfully acquire नहीं कर सकते, उसकी reason है कि maybe you are not giving a right answers in the interview. शहजाद भाई। उसमें वही बात है कि आपका पिछला एक्सपोजर कितना है। फर्स्ट करें आपका एक्सपोजर किसी और डोमेन का था, लेकिन 100 के लिए थोड़ा सा उनको डिफरेंट चाहिए। अब होता क्या है कि मोस्ट जॉब्स में वो आपको वेरी फ्यू पीपल जो आपको मतलब ग्रूम करेंगे, आपको ट्रेन करेंगे 100 के हवाले से। वो एक्सपेक्ट करेंगे आपको ऑलरेडी चीजों का पता है। तो उसके लिए जाने से पहले आप थोड़ा सा रिसर्च करें, आप देखें कि उसके आप जो वो वहाँ पे किस किस्म की जॉब है, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कितनी है जो आपसे मैच करती है। मिसाल के तौर पर उसमें अगर 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो उसमें आप 5-6 आपको मैच करती है आपसे कि नहीं। अगर एक भी मैच नहीं करती तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ चीजें मैच करती हैं तो कुछ चीजों की आप वहाँ बाकी चीजें स्टडी करके जा सकते हो और उनको बता सकते हो कि जी मेरे पास थ्योरेटिकल नॉलेज है, लेकिन मैं आई एम अ गुड लर्नर। ये भी एक अच्छा अप्रोच होता है। उसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि किसी भी इंटरव्यू में अगर आपको कोई सवाल का जवाब नहीं आता, आप वहाँ गलत आंसर मत दो, आप उसको ये कह दो कि जी इसका मुझे आइडिया नहीं है, तो मैं मतलब आई कैन लर्न अबाउट इट, बल्कि मुझे अब इसका बिल्कुल नहीं पता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के अंदर। लेकिन बाज कोशिश में आप गलत आंसर दे देते हो या गलत साइड पे चल पड़ते हो, तो इंटरव्यूअर भी आपको वो उसको एंजॉय करते हुए आपको गलत ट्रैक पे ले जाता है। अवॉइड दैट सिचुएशन। अगर आपको नहीं आता तो नहीं आता, ठीक है, लेकिन आपको कुछ तो आता है। जो आपको आता है आप उस पर कोशिश करें कि उस पर सही आंसर दें, और जहां नहीं आता वहां ओपनली उसको बोल दें। और शौक के लिए डेफिनेटली वो दे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ पता हो थोड़ा सा, कि होता है क्या है, करना क्या है। थोड़ा सा उसको प्रिपेयर होकर जाए। एनालिस्ट के क्वेश्चंस, एनालिस्ट का रोल क्या होता है, उसके क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, थोड़ा सा उसको करें। हम कोशिश करें कि गिस्प के प्लेटफॉर्म से भी हम भी एक इस तरह का निकाले, थोड़ा से भी एक वो कि क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनके क्या आंसर्स होंगे। शहजाद तो भाई, इंशाल्लाह आई थिंक दिस इज अ गुड सजेशन। अभी आपने खुद ही आंसर कर दिया। ये ना इंटरव्यू पैनल जो सा है ना, उसका कोई एक छोटा सा सेशन होना चाहिए। विल प्लान इट समडे इंशाल्लाह। यू नीड टू ब्रिंग इन सम एचआर गाइज इनटू इट एज वेल। ठीक है, आगे चले। अगला अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, अगला क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट टूल्स आई नीड टू लर्न। इट इज अ वेरी हार्ड क्वेश्चन। डिपेंड करता है, जिस तरह अभी हम लोगों ने आपको जॉब डिस्क्रिप्शन दिखाई है। से फॉर एग्जांपल अभी शहजाद भाई की जो पिछली जॉब डिस्क्रिप्शन थी वाज अबाउट हार्डकोर सिम। तो हार्डकोर सिम के लिए आपको स्प्लंक को डाउनलोड कर लें। 500 MB, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग शहजाद भाई, यू कैन इंजेस्ट 500 MB ऑफ डाटा। सो उसको इंजेस्ट करें और उसको उसके साथ प्ले करके देखें। और एलियन वोल्ट जो सा एक ओपन सोर्स सिम सोल्यूशन है, यू कैन प्ले इट। दो आई एब्सोल्युटली हेट दैट प्लेटफॉर्म, बट यू कैन प्ले इट। इसका OTX is a really good feature set, so you can try your level best to learn it, and फिर आप इंटरव्यू में जाके देखें इंशाल्लाह you would have a better success. जिस तरह मैंने कहा टू डू लिस्ट के अंदर build your own lab, तो वो आपकी लैब का पार्ट हो जाएगा और वो टूल सेट आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, काली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि उर्दू IT का CEH, मुझे लग रहा है मैं यहाँ मार्केटिंग कर रहा हूँ उर्दू IT की। CEH की जो कोर्स है इज रियली हेल्पफुल फॉर यू, वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। शहजाद भाई, सम टूल्स। नहीं, उसमें मार्केटिंग की बात नहीं है। बात यह है कि बाज लोगों को नहीं आइडिया होता है, तो वो जो भी मतलब हमने चीजें ऑलरेडी रेडी है, हमारे पास अवेलेबल है, उसका हमें बताना चाहिए। जैसे हमारी जो गाइड है उसके अंदर भी हमने मेंशन किया है कि आपको किस किस्म के टूल्स का पता होना चाहिए। तो उसमें बात वही है कि टूल्स अगर सिम के लिए जॉब के लिए जा रहे हैं तो सिम को मुश्किल होता है डाउनलोड करना, क्योंकि सब अवेलेबल नहीं है। स्प्लंक है जैसे अवेलेबल, बताया वो वही साइज है 500 MB। उसके अंदर स्प्लंक के तो इवन वो भी देते हैं 2 वीक्स का, वो भी देते हैं ऑन क्लाउड, उस पर डेटा भी अवेलेबल होता है। अच्छा, तो क्लाउड अकाउंट देते हैं आपको, जो 2 वीक्स है वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हो उनकी वेबसाइट पे। प्लस इनका फंडामेंटल्स वर्क का कोर्स है वो फ्री है, वो भी आप ले सकते हो। वेरी गुड। तो चीजें हैं। हमने कोशिश की थी अपनी गाइड में कुछ चीजें डालने की, उसमें हमने लिंक्स भी डाले हैं, उसमें हमने कुछ वेबसाइट्स भी डाली है जहां से फ्री कोर्सेज अवेलेबल है, तो उसको देखें। और टूल्स का ये होता है कि एडमैप बहुत बेसिक है। एडमैप का पता होगा, उसके कमांड्स का कुछ पता होगा कैसे होता है, ठीक है। अब एक वो आता था अपना मतलब नेसेस का पता हो अगर, ये बड़े बेसिक बेसिक टूल्स है, ठीक है। तो इसके अलावा जो भी आपको फ्री अवेलेबल मिलता है, अब तो टूल्स अवेलेबल
टूल्स अवेलेबल नहीं है फ्रीली ज्यादा, पहले काफी टूल्स अवेलेबल होते थे। तो ये SSH क्लाइंट यूज करना आपको आना चाहिए, लेडीज की कुछ कमांड्स आनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। काली पे अगर आप कर सकते हो काम, तो कई चीजें हैं जो मतलब अभी हम भी ऐसी है कि हम डेली कोई ना कोई नई चीज सीख रहे होते हैं बाजू की चीज में। मैं लिनक्स का बंदा नहीं हूँ, विंडोज का आदमी हूँ, लेकिन मैं अभी स्प्लग जो मैं लिनक्स पे इंस्टॉल किया था हमने, तो लिनक्स उसकी वजह से मैं लिनक्स पे कुछ मुझे थोड़ा बहुत काम शुरू किया है। तो ऐसे ही है, कीप योर माइंड ओपन, रेडी टू लर्न एवरीथिंग। कोई भी चीजें स्टडी करने से मत घबराए। अगर आपको कोई भी चीज आपने करनी है, आप ये ना डरे कि मुझे पढ़ना पड़ेगा, पढ़े बगैर आप कुछ ज्यादा नहीं कर सकेंगे। कुछ स्टडी करके चीजों को अच्छा, ज्यादा अच्छा आप अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर सकते हैं। तो अगर शहजाद आपका भाई, स्टार्ट है या आपका मिड है, आप करियर है, तो आप उस पर ज्यादा फोकस करें, कॉन्सेप्ट्स पे। जी Shahzad bhai, there are a lot of questions flowing in, मगर मेरे ख्याल में couple of other slides before we move on. एक key thing जो शुएब हमारा CEH का trainer है keep on saying कि it's not about the tool, it's about thinking approach rather than a tool. अगर आपकी thinking approach ठीक है, तो आप जो से किसी भी tool के जरिए as far as it has a functionality, you can move on. So let's move on to the next slide. Keep posting your questions because I have 10 more questions. We will see how much time we are left with. Salary trends. So absolutely everybody want to know about salary. Don't take this slide home. इसको ना समझिएगा कि ये जी जनाब आप absolutely ये hit कर सकते हैं, ठीक है। ये लाजमी नहीं है, ये hard and fast rule नहीं है, क्योंकि ये information जो सा है मेरा नहीं ख्याल कि पूरी दुनिया से इकट्ठी की गई है। ये सिर्फ UK based market है and salary, average salary is around 40K, ठीक है ना। अगर आप साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, मगर ये सिक्योरिटी एनालिस्ट 1 की बात नहीं है। सिक्योरिटी एनालिस्ट 1 में भी 30K के दरमियान स्टार्ट करता है। बट अगर आप हार्डकोर कोर की बात करते हैं और सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर जो बहुत एडवांस्ड हैं, जिसमें बहुत हायर लेवल का वर्क हो रहा है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट 60K। सो ये वेरिएंट है, लाजमी नहीं है ये आपके लिए सही हो, गल्फ के लिए सही हो या एशियन कंट्रीज के लिए सही हो। आगे चलते हैं, हाउ वी कैन हेल्प। मेरे ख्याल में मैं और शहजाद भाई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि एजुकेशन फॉर ऑल ट्रेनिंग, इंटरव्यू क्वेश्चन, क्विज इंजन, डिस्कशन फोरम हमारे पास है, गेस्ट के पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, एक्सपीरियंस शेयरिंग, जॉब एंड गाइडेंस, और मे बी शहजाद भाई if you're open in the future you can offer a mentor program. So if somebody is really serious to jump into a cyber security, you can ask your guys who are happy to provide a help. आगे चलते हैं, कीप अप टू डेट। सो ये मैंने ना बहुत सारे लोगों को नाराज करके और लेट्स गो वन स्टेप बैक। हाँ, बहुत सारे लोगों को नाराज करके जो सा है ये लिस्ट बनाई, और ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, डोंट कंसीडर दिस अ लास्ट लिस्ट, बट साइबर सिक्योरिटी के अंदर आपको जो सा है अपडेटेड रहना पड़ता है, और आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि आपके पास अपडेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, ठीक है। लाइक द अदर डे आई वॉक इनटू द ऑफिस एंड सॉ गाय स्टॉप मी एंड सेज, you know, there is a vulnerability in Windows 7. Okay, oh well, we are not using Windows 7 in our environment, chill out. Or there is a vulnerability in Drupal. So आपको up to date रहना पड़ता है, what are the techniques and tactics being used by your adversaries. तो उसके लिए जो से बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, हर बंदे की अपनी जो सी है की लिस्ट है। Schneier on security, I have met this guy, brilliant. कार्बन सिक्योरिटी, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं जो साइबर सिक्योरिटी में, ये ब्लॉग है और इसका ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसने एक बुक लिखी थी स्पैम नेशन के नाम पे, कि रशियंस जो एडवर्सरीज हैं वो ये फार्मास्यूटिकल स्कैम्स कैसे करते हैं और टारगेट द यूएस ऑडियंस। ब्रिलियंट बुक, थोड़ी सी बोरिंग रीड है, मगर आई वुड सजेस्ट यू डू रीड द बुक्स। रेडिट, सुबह उठ के मेरे ख्याल में पहला मेरा टेक्नोलॉजी काम अपार्ट फ्रॉम अदर रिचुअल्स is go on a Reddit and NetSec, ठीक है। It is a very good platform to go to, कुछ भी हो रहा है दुनिया में। Intel Techniques, माइकल वेजल, इसने एक बुक भी लिखी है अबाउट OSINT के ऊपर, इट्स अ रियली गुड रीड। आपको सिर्फ जस्ट प्राइवेसी के अराउंड जो सा है आपको हेल्प आउट करती है। US CERT इज अमेजिंग, US CERT के ऊपर जो सी है ऑलमोस्ट ऑल वल्नरेबिलिटीज की डिटेल्स आपको मिल जाती हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू टू गो ऑन इट। डिफेंस सिक्योरिटी पॉडकास्ट, ये एक ग्रुप है जो पॉडकास्ट करता है अराउंड अ सिक्योरिटी इंसिडेंट दैट हैपन इन लास्ट 1 month और 2 months टाइम, और वो कवर करते हैं। मेरे ख्याल में महीने में एक आध इनका पॉडकास्ट होता है। आई वुड सजेस्ट यू, अगर आपकी लॉन्गर ड्राइव है टुवर्ड्स योर वर्क, डोंट लिसन टू बॉलीवुड म्यूजिक, लिसन टू दिस, ओके, दैट वुड हेल्प यू। रजिस्टर इज आल्सो अ गुड प्लेटफॉर्म अब कुछ न्यूज़ हासिल करने के लिए, and that's all from our side. So moving on to the last slide of this
session is key takeaways. आपने session attend किया, अब key takeaways क्या हैं? Key takeaway number 1 is nothing will work unless you do. यूके के अंदर जो सा है, जितने लोग रहते हैं जिन लोगों को साइबर सिक्योरिटी में हेल्प चाहिए होती है, मार्केट में जंप करते हैं, माय नंबर इज पब्लिकली अवेलेबल फॉर देम जस्ट फॉर अ यूके मार्केट. आई शुड नॉट से अ वर्ड पब्लिकली, अवेलेबल टू देम इफ दे आर इन यूके. अगर आप यूके में हैं और आपको वीजे का कोई मसला नहीं है, आपको साइबर सिक्योरिटी में जॉब चाहिए, प्लीज गेट इन टच विद मी, admin@urduitacademy.com. I will talk to you and I will help you. On the basis of that experience, लास्ट ईयर हमने 8 से 9 प्लेसमेंट में हेल्प की है. वो भाई जो कैब ड्राइविंग कर रहे थे या कोई टिल पे काम कर रहे थे, तो उनको हेल्प की है गेट द जॉब इनटू द मार्केट एंड दे आर रियली हैप्पी. ओके, एंड आई फील हैप्पी अबाउट इट, हेल्पिंग अदर. और मसला उसके अंदर लेसन लर्न ये है, नथिंग विल वर्क अनलेस यू डू. अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो मैं आपको जॉब नहीं दिला सकता. ठीक है, प्रैक्टिस इज द की, चैलेंज योरसेल्फ, डेली डोज ऑफ सिक्योरिटी, जैसा मैंने ऊपर एग्जांपल दी, यू नीड अ डोज ऑफ सिक्योरिटी एंड देयर इज समथिंग फॉर एवरीवन. अगर आपको प्रोग्रामिंग आती या नहीं आती, देयर इज अ ऑप्शन फॉर यू, मगर टू रीच ऑन द टॉप यू माइट नीड अ लिटिल बिट ऑफ प्रोग्रामिंग. ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम मी. देयर आर सम मोर क्वेश्चन. शहजाद भाई, आर यू स्टिल देयर? हाँ जी, मैं तो एंड तक रहूंगा, फिक्र ना करें. अच्छा ठीक है, मुझे छोड़ के ना जाइएगा. नहीं, मैं नहीं लीव करता. लोग आ रहे जा रहे, माशाल्लाह. We have a good number today. So like we crossed 50, 52, mashallah, we have yeah. people. So Yeah. let's do the question answers. Yeah, very interesting question. You didn't talk about cloud security. Absolutely, मेरी गलती है, मैंने cloud security की बात नहीं की, क्योंकि 2 साल पहले cloud security, 2 नहीं 3 साल पहले cloud security hit me like nothing else. Or I work very, very intensively on cloud security, mostly around AWS and Azure. और cloud security is really good thing, मगर cloud security specifically field जोन से है ना, वो बहुत रेयर नजर आती है. आपको नजर आती है क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्ट का जॉब रोल नजर आ जाएगा, मगर हजारों में एक आधा नजर आएगा आपको. ठीक है ना, तो इसलिए क्लाउड सिक्योरिटी को मेरे ख्याल में हमने साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस या इस तरह करके किसी चीज में मैंने अपने पिलर्स में बताया एज अ सिंगुलर पिलर वो स्टैंड नहीं करता अभी तक, मगर मे बी इन फ्यूचर इट वुड बी, एंड इट्स एन इमर्जिंग मार्केट, देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स इन इट. मुझे अच्छी तरह याद है कि 5 साल पहले हम लोग हार्डकोर AWS में, आई वर्क फॉर अ गेमिंग कंपनी कॉल्ड सेगा, और हमारे गेमिंग सर्वर हैं, दे आर मोस्टली on a cloud services platform, और one of the biggest requirement was to protect them. और protect करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें चाहिए थी, like for example हमें visibility into our AWS platform, उसके लिए हमें एक American product called Evident.io लेनी पड़ी, मगर it was not good enough to meet all our requirements. So up Evident.io is being bought by Palo Alto. So let's see what the future holds for us. But cloud security is becoming very, very important. That's why CASB solution is becoming very common. ठीक है, अभी recently we are working with Microsoft Cloud App Security, which is a really good tool अगर आप Office 365 के customer हैं. मेरे ख्याल में आज का एजेंडा was not to go into a technical details of the stuff. Maybe किसी के लिए वो solution सही हो, किसी के लिए ना सही हो. तो today's discussion is not about technical. Shahzad bhai, do you want to add something onto cloud security? I think उसमें हमें अलग से कुछ सेशन करना चाहिए टेक्निकली. तो अभी की तो जरूरत नहीं इसके लिए. तो I think it's a good idea. We should do a session about cloud security also. कि उसमें क्या हो सकता है और किस किस्म की उसमें opportunities हैं. But for some other day inshallah. Okay, another question. आप आंसर करेंगे ये वाला. I have 8 years of experience as system admin in Windows and Windows only. Do you recommend me to go to SOC? हाँ बिल्कुल. I think is anybody who has knowledge about systems or operating system, Windows or Linux, is a good fit for SOC. ठीक है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि SOC में किस लेवल पे वो जाएगा. अगर वो L1 पे जाएगा तो हो सकता है L1 की सैलरी कम हो जितनी वो उस वक्त ले रहा है. तो he has to make the choice कि वो उसको either he should do something more so that he can go as L2. L2 पे जाएगा तो शायद उसका बेहतर एक होगा. लेकिन any knowledge of Windows, any knowledge of operating systems or network is a good fit because SOC में अगर आप बिल्कुल एक फ्रेश बंदा ले आते हैं तो कोई नॉलेज नहीं है चीजों का L1 के बंदे को. तो कोशिश करें आप अपनी इस नॉलेज के साथ कुछ सिक्योरिटी का पढ़ के आप उसमें वैल्यू ऐड करके आप एज ए L2 वहां पे जाए ताकि आप उसमें जो वहां L1 के बच्चे हैं उनकी आप हेल्प कर सके. तो इट्स अ गुड फिट.
just go for it, लेकिन आप उसमें do the right certifications, go look for the tools, security plus आप कर लें, उससे वो कर लें आप थोड़ा सा, उसके बाद इवन इसके forensics का आप कर सकते हैं. Forensics is a good option, क्योंकि आपको OS का अच्छा आइडिया है, तो आप forensics में जरा अच्छा window forensics आप अच्छा उसमें कर सकते हैं. तो think, add some value, then go to that part. Otherwise, you have to start from scratch again, so that will not be good. Okay, moving on to our next question. Thank you, Shahzad bhai. We have a small introduction on running a Splunk and Nessus. So Urdu IT Academy पे CEH की जो series है उसमें हमारा trainer Shoaib ने already discuss किया हुआ how to install a Nessus. So please go and look at that. Splunk के बारे में मेरे ख्याल में मैंने CCNA CyberOp के introduction के अंदर एक Splunk और couple of queries और dashboards के बारे में बताया हुआ है. So you can do that. That would fulfill the requirement. So मेरे ख्याल में there is no need of recording a new session, but we will discuss. Shahzad bhai, a question for you. I have done MS in cybersecurity. What should I do? You should look for a job. अगर मास्टर्स कर लिया है तो जॉब इज बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने मास्टर्स किया हो या बैचलर्स किया हो, अगर आप फील्ड में नहीं है तो वो मजा नहीं है. तो यू शुड लुक फॉर अ जॉब. तो जहां पे भी आप मतलब आप उसका सर्टिफिकेशंस की आपको, अगर आपको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है तो देन यू नीड सम सर्टिफिकेशन टू शो टू द एम्प्लॉयर. अदरवाइज क्योंकि वो यही एक्सपेक्ट करेगा कि बंदा अगर उसमें, एक्चुअली इट डजंट हैव टू गो टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, डिपेंड्स करता है आपका मास्टर्स किस में है. तो उसमें अगर मजीद थोड़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें तो हम अच्छा गाइड कर सकते हैं. लेकिन ट्राई टू गो फॉर अ जॉब इवन इफ इट इज इन द इंफ्रास्ट्रक्चर. फर्स्ट कर आप आपको एज ए विंडोज एडमिन मिलती है या कहीं और मिलती है, उसमें भी आप जाएं. उसके बाद आप 1-2 साल बाद आप मूव कर सकते हैं. आपको अपना एटीट्यूड, आपका डिपेंड करता है आपका एटीट्यूड कैसा है. बाज ऐसे लोग हैं जो एज ए पेंटेस्टर हायर होते हैं, लेकिन उनका अच्छा एटीट्यूड होता है तो वो बहुत जल्द मैनेजमेंट लेवल पे चले जाते हैं. तो ये जस्ट आपका उस पे होता है कि आप कितना अपने आप को वहां पे शो कर सकते हैं अपनी जॉब के अंदर, अपने काम के अंदर, और कितना क्विक लर्नर है. तो इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक. तो जस्ट ट्राई टू गो फॉर एनी गुड जॉब, or any even if you get an internship or something, go for it. Okay, a question about CCI security or CCI. Unfortunately, मुझे कुछ reports मिली through our platform Urdu IT Academy. There are a lot of users. Shahzad bhai, there are students in Middle East that they pay काफी सारे पैसे उन्होंने pay किए किसी institute को, और उन्होंने कहा भैया आप CCI कर लें, आपकी job हो जाएगी. तो I totally disagree with this approach. कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आप सीसीआई करके मार्केट में जॉब ढूंढने जाते हैं तो आप पे लोग हंसेंगे. अगर आपने सीसीआई कर लिया पहले तो मैं हैरान हूंगा और लोग हंसेंगे आपके ऊपर, क्योंकि आप एक्सपीरियंस लेके जा रहे हैं 1 साल का और आप सीसीआई की सर्टिफिकेशन उसके साथ लगा रहे हैं. आपके साथ ये सबसे बड़ी ज्यादती है. अनफॉर्चुनेटली अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स, आई एम नॉट स्पेसिफाइंग एनी नेम्स, मगर a lot of institutes are misguiding the students. So what I would suggest to you is to be very very careful. Don't do CCI until unless you have 4-5 years of experience. ये ऐसे ही है जिस तरह मैं CISSP के स्टूडेंट को कह दूं, किसी बंदे को कह दूं जो साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहता है, 6 महीने का एक्सपीरियंस है, भाई CISSP कर लो. अगर आप कर भी लोगे, you won't be able to justify yourself in the job interview. So please don't waste your money on doing a CCI unless you have 4-5 years of very good hands-on experience that you can justify. Moving on to your next question is, why cannot I do CEH? Shahzad bhai, I'm gonna fire this question to you. मैं मेरे ख्याल में हार्श हो जाऊंगा ये आंसर देते हुए. क्या सवाल है, फिर से बताएं. Why should I not do CEH? अच्छा, उसमें ऐसी बात है कि यार CEH एक अच्छा सर्टिफिकेशन था, लेकिन वो इतना ज्यादा हो गया है, और अब ऐसे भी लोग उसको करते हैं जिनको टूल्स का बिल्कुल आइडिया भी नहीं होता. पीपल डू इट विदाउट एनी नॉलेज, कि वो जाके डब्स लेते हैं, डब्स पढ़ते हैं, एग्जाम देके आ जाते हैं और उनको कुछ आइडिया नहीं होता. तो उसकी जो है ना सर्टिफिकेशन की वैल्यू वो खत्म हो गई है. और उसमें मतलब इट वाज अ गुड थिंग टू स्टार्ट. एक्चुअली जब ये स्टार्ट हुआ था तो अच्छा था, लेकिन वो एक मतलब उसको इसको ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं लेके चले, उसको जो ऑर्गेनाइजेशन थी. तो उसकी अब लोग डब से करते हैं. अगर आप यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अगर आप डब से सर्टिफिकेशन कर रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आपको, यू शुड नो कि आप इसकी कोई वैल्यू नहीं है सर्टिफिकेशन की. अगर आप नॉलेज से पढ़ के करते हैं तो फिर आप चाहे सीएच भी किया हो, उसकी वैल्यू है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देंगे वो ही विल नो
द पर्सन विल नो कि इस बंदे ने सीईएच जो है इसने पढ़ के किया है या इसने बगैर पढ़े किया है डंप के साथ। तो वो ये असल में यहाँ से आपकी वैल्यू ऐड होती है कि आपने जो भी सर्टिफिकेशन की है, ठीक है, तो वो उसके पीछे बेसिकली नॉलेज कितना है आपके पास। तो अगर आप समझते हो अपने नॉलेज है अच्छा, तो आप सीईएच भी करो तो वो भी चलेगा आपका। वो आप, क्योंकि वो हम डिसाइड नहीं करेंगे, वो इंटरव्यू वाला जो बैठा होगा वो आपको वो डिसाइड कर लेगा कि ये बंदे के पास नॉलेज है और ये बंदा इसको पता है चीजों का। Shehzad bhai, one question, I think this is very specific to you. Okay, I'm working in a SOC department and the job is all about alarms and I'm not learning enough. Actually ये question जो है 3-4 लोगों से आया है कि वो SOC department में काम कर रहे हैं और the job is just about clicking the alarms and replying back. So logging tickets. असल level 1 में की होता बात। ऐसे ही है, डिपेंड। इसका मतलब है कि वो लोग L1 पे है, तो इसका मतलब अगर जब सब अलार्म्स को देख रहे हो तो आप L1 पे हो, लेकिन आप उस पे देखिए आप जो भी सिस्टम यूज कर रहे हो आप उसके बारे में स्टडी तो कर सकते हो ना कि आप क्या 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 सिस्टम आप यूज कर रहे हैं। आप L1 के अंदर ही आप इतना अच्छा काम दिखाओ, आप अलार्म्स को क्लोज करो, हो सकता है आपको वो प्रमोट करके L2 पे या उसके बाद आगे ले जाए, तो वो आपको शो करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपका एक्सपीरियंस भी नहीं है और आप यहाँ पे अगर SOC पे चले गए हैं तो दैट इज एक्चुअली, हाँ यस, यू मे नॉट लर्न एनीथिंग बट दैट यू कैन लर्न ऑन द साइड। आप अपना भी प्राइवेटली इसको स्टडी कर सकते हो कि मैं किस सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, यहाँ से मैं क्या सीख सकता हूँ। बहुत सी चीजें अवेलेबल है, बहुत से टूल्स अवेलेबल है जिनको आप पर्सनली कर सकते हो और आप वहां पे अपनी कंपनी में उसको फीडबैक भी दे सकते हो। तो इसमें जो भी ऐसे लोग हैं वो मजीद ख्याल है थोड़ा सा वो वजाहत करते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कितना था पहले, क्या उनका एक्सपीरियंस था, क्या वो फ्रेश वहां पे चले गए हैं, क्योंकि नॉर्मली जो है L1 की जॉब जो फ्रेश को भी मिल जाती है बाज़ औक़ात। हमारे सऊदीया में जैसे सऊदी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनको उठा के L1 में लाके बिठा देते हैं, तो वो मसला नहीं है कि वो उनका भी खाली बहुत बेसिक लेवल का काम होता है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है एक्सक्यूज मी, कितने एक्सपीरियंस के बाद आप वहां पे बैठे हुए हो। तो इट्स पॉसिबल कि आप खाली अलार्म, अगर आप खाली एस्केलेशंस कर रहे हो तो इट्स पॉसिबल कि आप वहां से कुछ लर्न नहीं कर सकते। इन दैट केस लुक फॉर अ बेटर ऑप्शन। Thank you Shehzad bhai. We are going to take questions for next 5 more minutes क्योंकि बहुत सारे questions आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और जो लोग अभी लेट ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे ख्याल में रिकॉर्डिंग हो रही है, पता चल जाएगा सेशन के बाद, मेरे ख्याल में रेड डॉट है वहां पे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है प्लीज डोंट send a question voice message से ना करें, chat के जरिए कर लें। So moving on to the next question, 5 more minutes। 15 साल का एक्सपीरियंस है, ISO 27001 कर लिया है और I want to start a career in SOC as a level 2 support. Can you guide me which certification to start with? शहजाद भाई आप देंगे आंसर। शहजाद भाई CSSP कर ले, CISSP कर ले। कितने साल का एक्सपीरियंस? 15 साल। हाँ 15 years CISSP is आई 15 थिंक years इट्स a अ good गुड चॉइस। experience उन्हें लेवल 2 because फोकस नहीं करना चाहिए, उन्हें अब मैनेजरियल की तरफ जाना चाहिए। अगर do वो not हैंडल look करना for चाह रहे हैं तो फिर yes, मेरे ख्याल में सेंस की तरफ जाना चाहिए। do not look for like because 15 प्लस के बाद आप सिक्योरिटी प्लस तो नहीं करोगे, तो आपको CSSP की कोशिश करें, ठीक है, या आप जैसे CSM की कोशिश कर लें। लेकिन लेवल 2 पे आप ना सोचें, आप सब ये देखें कि आपको मतलब कहाँ जाना है, क्या आप उसमें सिक्योरिटी में जाना है। आप डेफिनेटली आप L1 पे तो नहीं जा सकेंगे क्योंकि सैलरी लेवल आपसे बहुत कम होगा। तो आप आपके हिसाब से आप CSSP की कोशिश करें, 6 मंथ का टारगेट रख के करें, हो सकता है। मैनेजरियल जो है वो काशिफ डिपेंड करता है किस कंट्री में है। हाँ जी बिल्कुल सऊदी ऐसे में ही है। बात पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे सऊदी ही आगे बैठेगा या वो लोकल आगे बैठेगा। तो लेकिन ये है कि कोशिश वही जो भी हमने आज गाइड में बातें की है इसमें सेशन में, उसमें यही है ना कि नॉलेज पे भी है, कितना नॉलेज आपके पास है, उसकी बेस पे डेफिनेटली आपको L2 में मिल सकता है, L3 में मिल सकता है, लेकिन आपको यू हैव टू शो सम सिक्योरिटी नॉलेज आल्सो। ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मैं फिशिंग मैं कंपनी के साथ फिशिंग में डील कर रहा हूँ और सैलरी इज गुड बट व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। सो मेरे ख्याल में हेलो भैया म्यूट आई एम गोना म्यूट ऑल। तो मेरे नज़दीक अगर आप एक ऐसी कंपनी में हैं जिसमें आप सॉर्ट ऑफ ऑफेंसिव टाइप ऑफ सिक्योरिटी कर रहे हैं, जिसमें फिशिंग कैंपेन्स कर रहे हैं, तो आप सोशल इंजीनियरिंग टाइप ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आप इफ यू थिंक ठीक है आप मेरी तरह 40 ईयर के नहीं है, ठीक है,
तो मेरे ख्याल में you want to get into incident response. I don't know. You ask yourself, as we have mentioned before, कि आप पहले अपने आप से पूछेंगे आप क्या करना चाहते हैं. ठीक है, 4 ऑप्शन, 7 पिलर्स आपके पास हैं पिछली स्लाइड्स में. 7 पिलर्स में से कौन सी ऐसी चीज है जो आप कर सकते हैं? हर बंदा जो सा कंप्लायंस नहीं कर सकता, और हर बंदा जो सा है वो इंसिडेंट रिस्पॉन्स या फोरेंसिक्स नहीं कर सकता. तो यू नीड टू डिसाइड योरसेल्फ व्हाट यू वांट टू डू, और मे बी यू डोंट वांट टू डू एनी ऑफ देम, यू वांट टू डू अ मैनेजमेंट स्टफ, और यू आर गुड एट मेंटरिंग पीपल. तो ये आपकी अपनी अपनी चॉइस है. ये क्वेश्चन अगर आप, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मगर आई थिंक इट इज वेरी वेरी हार्ड टू आंसर दिस अनलेस वी नो यू पर्सनली कि आपकी ये पॉजिटिव्स क्या हैं, नेगेटिव्स क्या हैं. उसके लिए आपके साथ टाइम गुजारने की जरूरत है. एक और क्वेश्चन आया है इज अराउंड क्लाउड सिक्योरिटी. और क्लाउड सिक्योरिटी, अगर आप ऑलरेडी सिक्योरिटी के अंदर और फायरवॉल कर रहे हैं, आईडीएस आईपीएस कर रहे हैं, यू वांट टू मूव टू द क्लाउड सिक्योरिटी, देन यू नीड टू लुक इनटू सम सॉल्यूशंस जो अवेलेबल हैं. स्काई हाई इज वेरी वेरी फेमस. Palo Alto has come up with Aperture, or Microsoft Office 365 has come up with SP5 लाइसेंस के साथ अवेलेबल हैं. तो आप वो सारे फीचर सेट देख सकते हैं, मगर डिपेंड आप किस जगह पर हैं. ये तमाम सोल्यूशन देखने के लिए आपको मार्केट में वो प्रोडक्ट चाहिए होगी. और एंड पॉइंट प्रोटेक्शन पे क्वेश्चन है. एंड पॉइंट के बहुत सारे टूल्स हैं, वट एवर यू वांट टू डू, मगर एक चीज जो मैं ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 years मार्केट में सिक्योरिटी पे बहुत क्लोजली काम करते हुए हुआ है, तो उसमें जो चीज व्हाट आई हैव सीन इज विजिबिलिटी इज एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू प्रोवाइड अ सिक्योरिटी. वो टूल जो आपको विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और फिर आपको कोरिलेशन करके उसको एनालाइज और रिस्पॉन्स करने में मदद देते हैं, दोज टूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और आई थिंक द वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ दैट होल सेट इज अ सिम सोल्यूशन. कोई ऐसा सोल्यूशन जो आपको सारी इंफॉर्मेशन इंजेस्ट करने की कैपेबिलिटी दे दे और उसके बाद आप उस सोल्यूशन से क्वेश्चन कर सकें. से फॉर एग्जांपल, जिस तरह आज का मैंने ट्विटर का फीड आपको दिखाया और उसमें कहा टीसीपी पोर्ट 2945. मैं अगर आपके पास आऊं और आपको कहूं, आप मेरे सॉक में बैठे हुए हैं कि शहजाद गिव मी ऑल द डिवाइसेस दैट हैव टॉक टू दिस स्पेसिफिक आईपी एड्रेस, और मैं आपके पास आता हूं और कहता हूं शहजाद गिव मी all the PCs that have this specific MAC address or this specific MD5 hash of the file, क्या आप मुझे दे सकते हैं? तो it means you have that much visibility. आपके पास absolute visibility is very very important. पहला step visibility, and then you can correlate the information जहां पे आप threat feeds वगैरह input कर सकते हैं. शहजाद भाई, ये क्वेश्चन आपके लिए मेरे ख्याल में, I am working in GRC domain. I have done PCIP and QSA certification. I'm looking for a SAN auditing training. Is that a right path? हाँ जी ठीक है. अब लेकिन उसके बाद भी मतलब डिपेंड करता है कि जॉब क्या करनी है. यही जॉब करनी है SAN, मतलब क्योंकि गवर्नेंस के बाद नॉर्मली मतलब यही होता है, या मैनेजमेंट होती है या ऐसे. पाथ इज लुक्स फाइन बट SAN ट्रेनिंग आर एक्सपेंसिव, सो कीप इन माइंड. मेरे ख्याल में इन्हें सीजा टाइप की कोई चीज नहीं करनी चाहिए. हाँ, सीसा इज अ गुड ऑप्शन. मेरे ख्याल में मैनेजरियल साइड पे जाना चाहिए, इन्हें हैंड्स ऑन की तरफ नहीं जाना चाहिए. व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम SAN, सीसा कोबिट, आई थिंक दे आर गुड ऑप्शंस. C-RISC is becoming very 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 famous in Europe. Last year I did my C-RISC exam. मुझे नहीं पता मैं पास कैसे हुआ, टू बी ऑनेस्ट. डंप नहीं है भाई, सीधी सी बात है, पहले बता रहा हूँ. मगर a lot of companies are looking for a digital risk managers right now. Lot of questions. Sorry guys, अगर मैं आपके question miss कर रहा हूँ तो it's not intentional. There are so many questions. कोर राउटिंग नॉलेज के लिए सिस्को ऐसे, आई थिंक दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस टॉपिक, मगर आपको राउटिंग आनी चाहिए. आई एम नॉट सजेस्टिंग यू लर्न अ बीजीपी, बट दिस इज नॉट अ साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड स्टफ. लेट्स नॉट गेट इनटू इट. Okay, jack of all trade, master of none. Very good question from Zishan. जैक ऑफ ऑल ट्रेड, मैं जो सा हूँ साइबर सिक्योरिटी या एनी नॉलेज सेट को एक पिरामिड के जरिए एक्सप्लेन कर सकता हूँ. लेट मी ग्रैब माय पेन. और मेरे ख्याल में we will take this one as a last question, शहजाद भाई. The session is going on very long. No problem. पिरामिड कुछ इस तरह का है, ठीक है. आप अगर इस लेवल पे काम कर रहे हैं
तो आपको बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी आपको पता होना चाहिए, आपको नेटवर्क का भी पता होना चाहिए, आपको जी पैकेट कैप्चर्स का भी पता होना चाहिए, सिम का भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। उसके बाद आप कहते हैं यार अब मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चाहिए, मुझे जी सिम चाहिए और थ्रेट प्रिवेंशन चाहिए। और इवेंचुअली आप जब टॉप पे चले जाते हो तो फिर यू कैन बी लाइक मेलवेयर रिवर्स इंजीनियर, ठीक है, मेलवेयर रिवर्स इंजीनियर, डिपेंड्स आप क्या करना चाहते हैं। तो जब आप पिरामिड के बॉटम पे हैं तो आपको बहुत सारा कुछ चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ नीचे से ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज लेके मेलवेयर रिवर्स इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इट वुड बी क्वाइट हार्ड। तो बेस ऑफ पिरामिड आपके पास बड़ी होनी चाहिए, उसके बाद आप ऊपर Sorry ग्रो sir, we are not able to hear you. Like we are not able to hear you. आई थिंक ये आपकी स्पीड का मसला हो सकता है। ओके शहजाद भाई, एनी 14 Okay, 15 years of experience working with the solution like CCI, CCNP, Fortinet. Yes, I think आपके लिए जो सा है क्वेश्चन भाई ने ये पूछा है कि मेरे पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, राउटिंग स्विचिंग फायरवॉल्स में मैंने बहुत काम कर लिया है, अब मैं अगला प्लानिंग क्या करूं। मेरे ख्याल में CISSP would be good path for you. 15 साल is a long time, और CISSP, CISM और CISSP would be a better path for you. मेरे ख्याल में शहजाद भाई, we should close the session. It's going on for quite long time. और उर्दू IT और गिफ्ट की तरफ से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई अपोलोजाइज अगर कोई कुछ क्वेश्चंस रह गए हो, ठीक है। मगर once again what I would suggest you is to go to Urdu IT Academy, go through all of our courses. There are some good courses, there are some brilliant courses, there are some excellent courses, ठीक है, depending upon our trainers. और अगर आप में से कोई volunteer करना चाहता है तो please get in touch with us, admin@Urdu IT Academy. खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज और बहुत शुक्रिया शहजाद भाई। Thank you, ji. Thank you, everybody.